So another CNS effect which is seen with the anticholinergic drug is the Parkinsonism. We give the drug in the Parkinsonism. What happened in Parkinsonism? Parkinsonism, there is a decrease in the dopamine level, and there is a increase in the, if there is a decrease in the dopamine level, the acetylcholine will automatically get increased. So we either we can give the dopamine agonist, but or we can give the anticholinergic drug. Here we are discussing about the anticholinergic drugs. So we will target about this one, anticholinergic. And we can also treat we can also treat the extrapyramidal symptoms also with the anticholinergic drug. Extrapyramidal symptoms which are induced by drugs like antipsychotic drugs, metoclopramide, these drugs blocks the dopamine level. Dopamine, when it is blocked, acetylcholine will increase, and again we can target the acetylcholine. Central anticholinergic we have to target because we want the effect centrally. Parkinson is a central disease, we want effect centrally. So centrally acting anticholinergic, benzatropine, benzhexol, and bipyridine. These are the centrally acting anticholinergic drugs. The another one, the action is on the smooth muscles. Smooth muscles, M3 receptors are present, and we have to block smooth muscles. And again, you can remember by this, if only the anticholinergic increasing the heart activity, rest everywhere it is decreasing the activity in the smooth muscle. So in the smooth muscle, tone and contraction will decrease, peristalsis will decrease. So we can use this type of drug in the spasm. The antispasmodic drugs are used. So, and the second one is in the bronchus. Smooth muscles are also present in the bronchus, and we have the bronchodilation when we stimulate anticholinergic. When we give the anticholinergic drug, cholinergic is anticholinergic will decrease everywhere, so it will cause the bronchodilation. And again here also it is decreasing, so it will cause the relaxation of detrusor muscle. And again, this can be used in the overactive bladder because the bladder is contracting, overacting, and we are relaxing the bladder with the anticholinergic drug. So we can treat this overactive bladder by giving either anticholinergic or either adrenergic. This I am explaining again and again. Anticholinergic and adrenergic move side by side. मतलब एक जैसा काम करते हैं anticholinergic और adrenergic. Anticholinergic is increasing the capacity of bladder, urinary bladder. Adrenergic is also increasing the capacity. So we have which adrenergic agonist? Beta 3 agonist. Mirabegron we have. We have mirabegron adrenergic agonist for the overactive bladder, and we have anticholinergic drugs also for the overactive bladder. तो एंटीस्पाज्मोडिक में डाइसाइक्लोमीन है, स्पेसिफिक डाइसाइक्लोमीन. मेफ्टालिस्पाज सबने देखा होगा. मेफ्टालिस्पाज बहुत अवेलेबल, बहुत कॉमनली यूज होती है मेफ्टालिस्पाज फॉर द पेन पर्पस, क्योंकि वो एंटीस्पाज्मोडिक की तरह काम करती है. डाइसाइक्लोमीन इज अ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. क्यों डाइसाइक्लोमीन ही? क्योंकि ये इसका एंटी मुस्कारिनिक इफेक्ट कम होता है, वीक एंटी मुस्कारिनिक इफेक्ट होता है, इसीलिए डाइसाइक्लोमीन. ऑल्सो यूजफुल इन डिस्मेनोरिया. बिलियरी और रीनल कॉलिक में नहीं है. बिलियरी और रीनल कॉलिक में कौन सी होगी फिर? नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन बिलियरी एंड रीनल कॉलिक. जेनाइटो यूरिनरी की बात करेंगे तो वी हैव सीन बिकॉज कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर दे सकते हैं. नॉक्टर्नल एनुरेसिस जो बेड वेटिंग होती है चिल्ड्रन में, उसमें भी दे सकते हैं बिकॉज वहां पे भी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा है. यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो ultimately what we are doing with anticholinergic, we are relaxing the bladder. It is decreasing तो relaxing the bladder. When we relax the bladder तो overactive bladder treat हो जाएगा. This is the vasoselective drugs. Vasoselective drug, अब इसको एक निमोनिक किस तरह याद करेंगे? इसका जो ब्रांड नेम है देखिए, वैसी गार्ड करके लिखा हुआ है. वैसी इज द वसाइको सेलेक्टिव. ठीक है, निमोनिक करके याद करेंगे. निमोनिक है फ्लो आउट टीडीएस. तो वसाइको सेलेक्टिव कौन सी ड्रग है जो कि हम यूज करते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर में? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की बात कर रहे हैं अभी हम. आज हम एंटीकोलिनर्जिक की बात कर रहे हैं. पिछले लेक्चर में आपको एड्रेनर्जिक भी बता चुके हैं. तो फ्लेवोक्सेट है, ऑक्सीब्यूटानिन है, टॉल्टिरोडिन है, डेरिफिनासिन, सोलिफिनासिन. ये दो ड्रग मैंने लास्ट में लिखी है. फ्लो आउट टीडीएस में ये लास्ट की ड्रग है. क्यों? क्योंकि ये सुपर सेलेक्टिव है. बार बार कहता हूं कि सेलेक्टिविटी जिसकी ज्यादा होती है ये ज्यादा अच्छा काम करती है, बस कम एडवर्स इफेक्ट होता है इसके साथ, इसीलिए ये सुपर सेलेक्टिव का नाम इसको दिया है. डेरिफिनासिन एंड सोलिफिनासिन प्रेफरेबली M3 को ही ब्लॉक करती है, इसीलिए ओवर एक्टिव ब्लैडर में यही कॉमनली यूज होती है. और डेरिफिनासिन का देखिए, इसमें भी डेरिफिनासिन ही लिखा हुआ है इसीलिए. ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. रेस्पिरेटरी में क्या हो रहा था?
rest everywhere is decreasing. तो again bronchodilation, we want bronchodilation in asthma. तो bronchodilation के लिए कौन सी स्पेसिफिक ड्रग है? इप्राट्रोपियम एंड ट्रायोट्रोपियम. ये स्पेसिफिकली ब्लॉक करती है ब्रोंकस के रिसेप्टर को M1 एंड M3. selectively blocks these receptors, useful in the bronchial asthma and COPD. ठीक. फिर उसके बाद सिक्रीशंस को इनहिबिट करना. अगर सिक्रीशंस इनहिबिट हो जाएंगे तो सिक्रीशन स्वेटिंग बाहर स्वेटिंग नहीं होगी तो एक तरह से इसी कहते हैं एट्रोपिन फीवर. एट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक इज कॉजिंग इनहिबिशन ऑफ स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन. तो जब फीवर होता है, टेम्परेचर राइज होता है तो सिक्रीशन होकर वो फीवर कम हो जाता है या स्वेटिंग होकर फीवर कम हो जाता है. यहाँ पे स्वेटिंग नहीं हो पा रही है तो दिस इज कॉल्ड एट्रोपिन फीवर. तो ये सिक्रीशन को कम करता है. रेस्ट एवरीवेयर इज डिक्रीजिंग. अगर इतना याद है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा. सिक्रीशन भी कम करेगा, ब्रोंकस भी डायलेट करेगा. प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, अगेन द फंडा इज सेम. सिक्रीशन इज डिक्रीज सिक्रीशन. सिक्रीशन कम होगा तो स्पाज्म कम होगा, लैरिंगोस्पाज्म कम होगा, इंट्यूबेशन करने में आसानी रहेगी. तो दिस इज द थिंग. एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरुलेट स्पेसिफिक है फॉर द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए. पेप्टिक अल्सर डिजीज में द M1 रिसेप्टर्स, जो लास्ट वीडियो पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से रिसेप्टर्स कहाँ का प्रेजेंट, दैट वीडियो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेप्टर का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. M1 ब्लॉकर पायरेंजेपिन एंड टिलेंजेपिन ये यूज किया जा सकता है. एंड बट PPI and H2 दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस. अगर PPI आया तो मार्क PPI, नहीं तो H2 एंटागोनिस्ट. दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेप्टिक अल्सर डिजीज. एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर डिजीज क्योंकि नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकर है इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. बिलियरी ट्रैक्ट में फिर वही बात, एंटीस्पाज्मोडिक एक्शन होता है इसलिए बिलियरी ट्रैक्ट में है, लेकिन ज्यादा अच्छी काम नहीं करती है. नाइट्रेट्स आर मोर इफेक्टिव देन एट्रोपिन फॉर दिस टाइप ऑफ स्पाज्म. ठीक है, बिलियरी स्पाज्म. आई में एंटीकोलिनर्जिक की तरह नहीं. कोलिनर्जिक सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस करा रहे थे. एंटीकोलिनर्जिक्स जो है अगर एट्रोपिन देते हैं तो आई में दो इफेक्ट होता है. एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टर पिपली को या स्पिंक्टर पिपली, इनको पैरालाइज करना, इनको इनहिबिट करना. तो कॉन्स्ट्रिक्टर पिपली अगर स्टिमुलेट होती तो कॉन्स्ट्रिक्ट होता था ना, मियोसिस होता था. पैरालाइज हो गई तो मिड्रियासिस हो जाएगा. और दूसरा इफेक्ट है सिलियरी मसल्स को पैरालाइज करना. सिलियरी मसल्स अगर पैरालाइज हो गई, सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो एकोमोडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. जैसे अगर हम किसी पिक्चर थिएटर में जाते हैं तो हमारी आई एकोमोडेट होती है पहले क्योंकि हम लाइट से डार्क में जा रहे हैं. पीपल डायलेट होती है, एकोमोडेशन होती है. और वो एकोमोडेशन कौन करता है? वो एकोमोडेशन सिलियरी मसल्स करती हैं. और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होती है वो सिलियरी मसल्स को भी पैरालाइज करती है. ये देखिए, ये सिलियरी मसल्स यहाँ पे रिलैक्स्ड है, पैरालाइज्ड है. लेंस का शेप नहीं बदल सकता. यहाँ पे सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसके कारण लेंस का शेप भी बदल जाता है. लेंस का शेप बदलेगा तो फोकस, तो रेटिना पे इमेज अच्छे से पड़ेगी. दैट इज द थिंग. कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हैं फॉर द मिड्रियाटिक एंड साइक्लोप्लेजिक एक्शन? एट्रोपिन का लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है. और होम एट्रोपिन यूज करते हैं, ये ज्यादा पोटेंट है. कंजीनर एट्रोपिन का साइक्लोपेंटोलेट है, ट्रोपिकामाइड है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है. ट्रोपिकामाइड जरूर याद रखिएगा. ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिकली, उसको आई में डाल रहे हैं ट्रोपिकामाइड. इसका फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन होता है, इसीलिए हम कह रहे थे याद रखिएगा. इसमें आप देखिए ट्रोपिकामाइड के साथ फिनाइलेफ्रिन लिखा हुआ है. अगेन यही फंडा है. ट्रोपिकामाइड एंटीकोलिनर्जिक, फिनाइलेफ्रिन लास्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ा था हमने. फिनाइलेफ्रिन वाज द एड्रेनर्जिक ड्रग, अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग. तो जो एंटीकोलिनर्जिक कर रही है वही एड्रेनर्जिक कर रही है, तो दोनों ही मिड्रियासिस करा रहे हैं. तो ज्यादा एक्शन तेजी जल्दी से आता है. दिस वाज द इफेक्ट. एक ये डायग्राम भी समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है. यहाँ पे फिर वही बात है कि एक एड्रेनर्जिक है, एक एंटीकोलिनर्जिक है. फिनाइलेफ्रिन एड्रेनर्जिक है और ये कैसे काम कर रही है? कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायलेटेड पिपली. लास्ट वीडियो में ये भी हम लोगों ने देखा था कि क्या मैकेनिज्म होता है कोलिनर्जिक का, एड्रेनर्जिक का, कैसे काम करती है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशंस में. तो अगर अल्फा 1 अगर स्टिमुलेट होता है तो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं डायलेटेड पिपली. अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये खींचेगा अपनी तरफ, तो ये डायलेटेड मिड्रियासिस हो जाएगा. लेकिन एंटी मुस्कार्निक का काम क्या होता है? स्फिंक्टर पिपली, जो कंस्ट्रिक्टर पिपली, जो सर्कुलर मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करना. रिलैक्स हो जाएगा तो फिर डायलेट हो जाएगा. तो दोनों का काम डायलेटेशन है. अल्टीमेटली एंड क्या है? मिड्रियासिस. लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है एक्टिव और पैसिव मिड्रियासिस का. एक्टिव मिड्रियासिस इससे होती है और पैसिव मिड्रियासिस इससे होती है. अब हम इसको ही क्यों एक्टिव मिड्रियासिस कहते हैं?
यू हैव टू फाइंड आउट, ये आपके लिए, इसको समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, तो उसमें लिख दीजिएगा, तो मैं उसको एक समझा दूंगा, एक नया वीडियो डाल के, उसको छोटा सा वीडियो डाल के समझा देंगे। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिडियासिस, व्हाई दिस इज कॉल्ड पैसिव मिडियासिस, व्हाई दिस इज नॉट कॉल्ड एक्टिव मिडियासिस, व्हाई दिस इज नॉट कॉल्ड पैसिव मिडियासिस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ यूज कर सकते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक को? आई में किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? हम डायलेटेशन कराना है, मिडियासिस कराना है। मिडियासिस क्यों कराते हैं? मिडियासिस कराते हैं ताकि हम रेटिना को देख सकें। तो रेटिनल एग्जामिनेशन के लिए ओनली मिडियासिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और ट्रोपिकामाइड शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज करते हैं। और एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन टेस्टिंग, जैसे चश्मा बनता है जब टेस्टिंग और रिफ्रैक्शन करते हैं तो उसमें मिडियासिस और साइक्लोप्लेजिया दोनों ही रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए डायग्नोस्टिक में हम यूज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक यूज है तो थेरापेटिक यूज भी है। कहाँ यूज कर सकते हैं थेरापेटिक? आयराइटिस, आयरिडोसाइक्लाइटिस, क्योंकि एट्रोपिन की वजह से ये मिड्रियाटिक और साइक्लोप्लेजिक मतलब रिलैक्स हो जाएगी, आई रिलैक्स हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और लोकल एनोडाइनिया इफेक्ट होता है क्योंकि उसमें लोकल वो पेन को कम कर, पेन भी कम हो जाता है इसकी वजह से। इसीलिए ये थेरापेटिक यूज है इसका, किसका? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का इन द आई। कोलिनर्जिक ड्रग पॉइजनिंग की बात करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक ड्रग से कौन सी पॉइजनिंग थी, और वो पॉइजनिंग थी ऑर्गेनोफॉस्फेट, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेस वाली थी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। क्या हो रहा था इसमें? कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, ओपी की वजह से कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ रही थी। तो हमें ऐसी ड्रग देनी है जो कि एंटीकोलिनर्जिक हो। तो एट्रोपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, इसीलिए हम एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन दे रहे हैं। और एंजाइम डीएक्टिवेटर, तो ओपी पॉइजनिंग का हम पूरा मैकेनिज्म, पूरा उसका किस तरह से उसका ड्रग्स है, कौन कौन सी ड्रग्स है, वो सब हम पढ़ चुके हैं पूरा लास्ट वीडियो में, ठीक है। कोलिनर्जिक की वीडियो देखोगे तो आप, तो उसमें मिल जाएगा ये। दूसरा और कहाँ दे सकते हैं? अगर माइस्थीनिया ग्रेविस है, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस में एंटीकोलिनेस्टेरेस दे रहे हैं और इस एंटीकोलिनेस्टेरेस से एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ रहा है, और उस एसिटाइलकोलिन की लेवल से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको रिवर्स करने के लिए पायरिडोस्टिग्मीन देना है। अच्छा, ये मैंने एक आप लोगों को एक निमोनिक बनाया है न्यू करके, क्योंकि दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है कि रिवर्सिबल में जो लिपिड सॉल्युबल और कोलिनर्जिक वाले में वीडियो में देखेंगे तो रिवर्सिबल में दो थे, लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल। लिपिड इनसॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल भी कहते हैं। तो उसके लिए एक न्यू पायरिडोस्टिग्मीन करके है। इसमें क्या है? न्यू, एन से नियोस्टिग्मीन है, ई से हाइड्रोफोनियम है, डब्ल्यू से वाटर सॉल्युबल मतलब लिपिड इनसॉल्युबल, और पायरिडोस्टिग्मीन। ये सारी ड्रग जो है लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग होती है। तो मतलब क्यों कहना चाह रहे हैं लिपिड सॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबल है इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पेरिफेरी में अगर एक्शन चाहिए तो आपको यही ड्रग देनी पड़ती है। जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ पेरिफेरल डिजीज, तो पायरिडोस्टिग्मीन दिया, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल इफेक्ट भी चाहिए तो लिपिड सॉल्युबल देनी पड़ेगी। बाकी कौन सा स्टिग्मीन बच गया? फाइसोस्टिग्मीन जो बच गया वो लिपिड सॉल्युबल है। तो इसीलिए यहाँ पे पायरिडोस्टिग्मीन लिखा हुआ है माइस्थीनिया ग्रेविस में। अगर पायरिडोस्टिग्मीन के एक्शन को रिवर्स करना है तो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दिए। क्यूरेव पॉइजनिंग में है तो उसमें भी एट्रोपिन के साथ नियोस्टिग्मीन सिर्फ इसलिए ताकि पेरिफेरल कोई साइड इफेक्ट ना आए एंटीकोलिनर्जिक की वजह से। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक कर रहा है ज्यादा, तो साइड इफेक्ट भी तो आ सकते हैं, तो नियोस्टिग्मीन उसके लिए, ठीक है। बेलाडोना, ये बहुत बड़ा अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। क्यों बेलाडोना इतना होता है? बेलाडोना एक प्लांट है, एट्रोपा बेलाडोना इसका नाम है, जहां से एट्रोपिन डिराइव की गई थी, ठीक है। क्यों नाम इसका आया बेलाडोना? बेला मतलब ब्यूटी होता है, डोना मतलब फीमेल होता है, ब्यूटीफुल लेडी, जो मतलब और ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या करते थे, आई में बेलाडोना का एक्सट्रैक्ट डालते थे, तो उससे क्या मिड्रियासिस होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है एट्रोपिन इज कॉजिंग द मिड्रियासिस, डिक्रीजिंग, एट्रोपिन इज कॉजिंग द मिड्रियासिस। तो मिड्रियासिस होने की वजह से वो ब्यूटीफुल दिखती थी। तो एट्रोपा बेलाडोना प्लांट्स, एट्रोपिन ड्राइव होता है बेलाडोना प्लांट से और धतूरा प्लांट, ये दो प्लांट है जहां से एट्रोपिन ड्राइव होता है। एट्रोपिन तभी हमने लिखा था जब जो हम पढ़ रहे थे एक नेचुरल अल्कलॉइड सेमी सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, वो उसमें एट्रोपिन था। तो बेलाडोना पॉइजनिंग या एट्रोपिन पॉइजनिंग या बेलाडोना पॉइजनिंग दोनों के नाम से आता है क्वेश्चन।
एट्रोपिन पॉइजनिंग भी आता है, बेलाडोना पॉइजनिंग भी आता है। अगर ये आपको पता है कि एट्रोपा बेलाडोना की वजह से, तो हो जाएगा। तो बेलाडोना एट्रोपिन पॉइजनिंग में ये फीचर्स होते हैं, फीचर्स वही होंगे जो एंटीकोलिनर्जिक के फीचर्स होते हैं। अगर आपको ये याद हो गया होगा एंटीकोलिनर्जिक के फीचर्स, तो आप आराम से कर सकते हो। ब्लाइंड एज अ बैट, एट्रोपिन से क्या हो रहा था, मिड्रियासिस हो रही थी। मिड्रियासिस, बहुत ज्यादा मिड्रियासिस इतनी हो जाए कि दिखना ही बंद हो जाए, तो ब्लाइंड एज अ बैट। बैट हमेशा चमगादड़ ब्लाइंड होती है ना, रात में ही दिखता है उसको बस। मैड एज अ हैटर, क्योंकि एट्रोपिन सीएनएस को एक्साइट कर रहा था, बाद में डिप्रेस कर रहा था, तो मैड एज अ हैटर। रेड एज अ बीट, हॉट एज अ हेयर, ड्राई एज अ बोर। सिक्रीशंस को एट्रोपिन कम कर रहा था, रेस्ट एवरीवेयर इट इज डिक्रीजिंग। सिक्रीशंस को कम कर रहा था, इसलिए ये फीचर्स आते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, अगर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पता है तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के इफेक्ट भी आप आराम से लिख सकते हो। एक बुक है बेलाडोना के ऊपर, एक बुक भी है डेडली नाइटशेड करके। अगर उस बुक को आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हाउ द लेडी वर यूजिंग द बेलाडोना टू ब्यूटिफाई हरसेल्फ। ये looking beautiful lady, and she has applied the belladonna extract. See the pupil of that lady, pupil उसका dilated है, midriasis है, तो this is the plant where जहाँ से belladonna extract किया गया। ट्रीटमेंट बाकी तो ठीक है, सिम्टोमेटिक और गैस्ट्रिक लवाइज, कोल्ड स्पंजिंग। फाइसोस्टिग्मीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। फाइसोस्टिग्मीन ही क्यों, यहाँ पे फाइसोस्टिग्मीन लिखा है, नहीं लिखा है ना, दीज आर लिपिड इनसॉल्युबल। फाइसोस्टिग्मीन लिपिड सॉल्युबल है। एट्रोपिन बेलाडोना की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो सीएनएस इफेक्ट भी आएगा, पेरिफेरल इफेक्ट भी आएगा। हमें सीएनएस और पेरिफेरल दोनों इफेक्ट को ब्लॉक करना है, इसीलिए फाइसोस्टिग्मीन लिखा हुआ है। इसीलिए ये अगर नहीं याद होगा तो आप गलती से लिख दोगे नियोस्टिग्मीन। नियोस्टिग्मीन नहीं लिखना है, इसमें फाइसोस्टिग्मीन लिखना है। अगर तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए लिपिड सॉल्युबल लिपिड इनसॉल्युबल की कहानी बता रहे हैं। बाकी असिस्टेड रेस्पिरेशन, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, एंड अगर कन्वर्जन्स है, सीजर्स हैं, तो डायज़ेपाम। लास्ट में मैंने बोला था कि आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा, क्योंकि अब अगर आपका फंडा क्लियर हो गया कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छे से आराम से याद हो जाएगा। पहले थी नेचुरल, एट्रोपिन को बताया था, एट्रोपिन क्या कर रहा था, हार्ट की एक्टिविटी एंटीकोलिनर्जिक बढ़ा रहा था। तो जहां पर ब्रेडिकार्डिया हो वहां पर वेगोलिटिक, वेगस को तोड़ना, वेगोलिटिक, तो टेकिकार्डिया कराने का काम करता है एट्रोपिन। ठीक है, एंटीडोट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग, ये भी समझ लिए हैं हम क्यों। अब इसका एक्शन भी साथ में लिख दिए हैं ताकि याद रहे, क्योंकि ये चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। दो चार्ट अब जो दिखाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। हायोसिन एंटी मोशन सिकनेस में बिहाइंड द ईयर पिन्ना लगाया था पैच स्कोपोलामीन का। सेमी सिंथेटिक में ब्रोंकोडायलेटर्स, इप्राट्रोपिन, ट्राइट्रोपिन ये स्पेसिफिक है, और हायोसिन ब्यूटाइलब्यूमाइड होमेट्रोपिन उसी कंजीन है। सिंथेटिक में मिडियाटिक साइक्लोप्लेजिक एक्शन देख रहे थे हम, एंटीकोलिनर्जिक की वजह से हो रहा था, और ड्रग थी साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। ट्रॉपिक से याद करिएगा, तो ट्रॉपिकली आई में। एंटी स्पाज्मोडिक यूनिटी रिटेन, अगर हम ओवर एक्टिव ब्लैडर में, क्योंकि ब्लैडर रिलैक्स कर रहा था, उसके लिए एक निमोनिक था, फ्लो आउट टीडियस। फ्लो आउट टीडियस उसके लिए निमोनिक था, तो फ्लो आउट टीडियस। एंटी पार्किंसोनिज्म, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स, सेंट्रली इफेक्ट है, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी देना है, ट्राइएक्सिफेनेडिल, प्रोसाक्लिडिन, बाइपेरिडीन, बेंजाट्रोपिन और फेनाट्रिन। एंटी सिक्रेटरी कहां पे, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में एंटी सिक्रेटरी ग्लाइकोपाइरोलेट, ऑक्सीफिनोनियम। एंटी स्पाज्मोडिक कहां पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डाइसाइक्लोमीन में, डाइसाइक्लोमीन देते हैं एंटी स्पाज्मोडिक, मेफ्टाल स्पाज्म में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, thank you, and please watch the video and please subscribe the video.